اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل کا نور عطا کر دیا اور باقی مخلوق سے ممتاز کر دیا۔ ہر آدمی کے دماغ میں اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، چنانچہ کئی مرتبہ جب ایک ہی چیز کو وہ مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں تو ان کی رائے مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ اختلاف اتنی عام ہے کہ یہ آپ کو پوری دنیا کے ہر معاشرے میں، ہر جماعت میں، ہر جگہ پر ملے گی۔ حتیٰ کہ گھر کی سطح پر بھی مختلف لوگوں کی سوچیں مختلف ہوتی ہیں۔ اگر ایک مذہب والے ایک بات پر متفق ہیں تو دوسرے مذہب والے اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اگر ایک ملک والے ایک بات پر متفق ہیں تو دوسرے ملک والے ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک خاندان والے لوگ ایک بات پر متفق ہیں تو دوسرے اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ہر جگہ پر آپ کو اختلاف ملے گا، لیکن ایک ایسی بات ہے کہ جس پر اس وقت دنیا کے سارے انسان متفق ہو چکے ہیں۔ کسی مذہب کے ہوں، کسی ملک سے ہوں، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، عربی ہوں یا اجمی ہوں، گورے ہوں یا کالے ہوں، مومن ہوں یا کافر ہوں، سب کے سب ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک عالمگیر فساد مچ چکا ہے۔ ہر بندہ یہ کہے گا، ہر طرف فساد نظر آتا ہے، بے سکونی نظر آتی ہے، بے چینی نظر آتی ہے، پریشانی نظر آتی ہے۔ آپ دنیا کی ترقی یافتہ لوگوں کے پاس چلے جائیں، ہر دوسرا بندہ جواب دے گا کہ زندگی بہت مشکل ہے، ساری دنیا کی سہولتیں اس کو میسر ہیں، من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، شتر بے مہار کی طرح اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ زندگی بہت مشکل ہے۔ تو گویا اس وقت کے دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ دنیا میں عالمگیر فساد برپا ہو چکا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ انسانیت اپنے ضمیر کے کندھوں پر اپنی لاش کو لے کر جا رہی ہے۔ اس فساد کا کوئی تو حل ہوگا، اسے ڈھونڈنے میں سب لگے ہوئے ہیں۔ اپنی اپنی سطح پر اپنی طرف سے ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، میری پریشانی ختم ہو جائے، میرے دل کو سکون مل جائے، مجھے عزت بھری زندگی نصیب ہو جائے۔ مگر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو جس کا حل ابھی مشکل نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہی پکڑنے سے محروم ہو گیا۔ ایک ڈور الجھ گئی ہے جس کو سلجھانے میں سب لگے ہوئے ہیں، مگر اس کا سرا کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ دنیا کے فلاسفر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت ان کا حل سوچ رہے ہیں، مگر ان کو بھی سرا نہیں ملتا ہے۔ سرا نہ ملنے کی ایک بنیادی وجہ ہے، ہم اپنے بڑوں سے ایک لطیفہ سنا کرتے تھے کہ ایک آدمی روشنی میں روپیہ ڈھونڈ رہا ہے۔ تو دوستوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا روپیہ ڈھونڈ رہا ہوں، گر گیا تھا۔ انہوں نے بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا، سب لوگ مل جل کر کے روپیہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن روپیہ ملتا ہی نہیں ہے۔ جب تھک ہار چکے تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہیں یقین ہے کہ تمہارا روپیہ گرا تھا؟ اس نے کہا یہ یقین ہے گرا تھا، مگر گھر کے اندر گرا تھا، لیکن تم تو گھر کے باہر ڈھونڈ رہے ہو۔ کہنے لگا وہاں اندھیرا تھا، یہاں روشنی تھی، میں نے کہا چلو روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ سارے لوگ اس روشنی میں ساری زندگی روپیہ ڈھونڈ رہے ہیں، روپیہ نہیں ملے گا۔ ہو بہو یہی مثال آج کے انسانوں کی ہے کہ اس کی متاع جو گم ہوئی ہے وہ من اور اندر سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ اس چیز کو باہر کی دنیا میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اس لیے اس فساد کا حل نظر نہیں آتا۔ پوری دنیا کو قمقموں سے روشن کرنے کا دعویٰ کرنے والا انسان آج اس کے من میں اندھیرا ہے، اس لیے کہ اس کو فساد کا حل نظر نہیں آتا۔ یہ اپنے من میں ڈھونڈیں، جو متاع گم ہوئی ہے پھر سرا ہاتھ آئے گا۔ اس لیے آج دنیا کے فلسفی حل پیش کرتے ہیں پریشانیوں کا کہ اقتصادی حالت اتنی اچھی ہو کہ ہر بندے کو کھانا مل جائے، لیکن ہم اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ جب معاشرے میں سب کچھ بندوں کو کھانے کے لیے ملا تو وہاں وہ پیٹ بھر کر پھر بدمستیوں میں مشغول ہو گئے، کھاؤ پیو عیش کرو اور مزے اڑاؤ۔ اس عیاشی میں انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیا، تو پھر بے سکونی، بھوکے تھے تو بھی بے سکونی، جب پیٹ بھر گئے تو اس سے بھی زیادہ بے سکونی۔ کسی دوسرے نے کہا کہ اس کا حل یہ نہیں بلکہ اس فساد کا یا پریشانی کا حل یہ ہے کہ سب کو تعلیم دے دو، سب کو تعلیم سے آراستہ کر دو، یہ بھی ایک اچھا حل ہے۔ لیکن جس معاشرے میں سب تعلیم یافتہ ہوں، ایجوکیشن ریٹ 100% کے قریب پہنچ چکا ہو یا 99% ہو، اس ماحول میں دیکھا گیا کہ لوگ اپنے علم کو اس طرح اپنے بزنس میں استعمال کرنے لگے کہ لوگوں کا سب پیسہ جمع ہو کر ان کی جیبوں میں آنے لگا، پھر بھی بے سکونی ہے۔
किसी ने कहा कि इसका हल ये है कि अपने अंदर तंजीम पैदा कर लो। चुनाचे जिन मुल्कों के अंदर आला दर्जे की तंजीम है, उसूलों की पाबंदी है, लोग कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कौमें जब आज पेट भर चुकी तो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी के लिए उन्होंने दूसरों पर पाबंदियाँ लगानी शुरू कर दी। इधर ये नहीं जा सकता, उधर वो नहीं जा सकता, मर्जी हमारी चलेगी, घर आपका रहेगा, मर्जी हमारी, तो इसमें भी हल नज़र नहीं आता। तो आखिर कोई तो हल होगा, कोई तो इस मसले का हल होगा। ये हल दुनिया के फ़लसफ़े बता नहीं सकते, इसलिए कि यह उनके दिमागों से भी ऊंची बात है। असल वजह यह है कि इंसान इतना गहरा है कि अपनी ज़ात में एक दुनिया लिए हुए है, इसलिए हमारे मशाइख ने इस दुनिया को आलम कबीर कहा है और इंसान के बदन को आलम सगीर कहा है। बाहर जो कुछ है सब कुछ इंसान के अंदर मौजूद है। आप गौर करें कि बाहर ज़मीन है, इंसान का बदन उसका बदल बन गया। बाहर ज़मीन में पहाड़ों के सिलसिले हैं, इंसान के जिस्म में हड्डियों के सिलसिले हैं। बाहर की दुनिया में पानी के दरिया हैं, अंदर की दुनिया में खून के दरिया चल रहे हैं। बाहर की दुनिया में खेतियां उगती हैं, इंसान के बाजू और बाकी जिस्म पर छोटे छोटे बाल। दुनिया में आपको जंगल नजर आते हैं, इंसान के सर पर बाल भवें जिस्म के कुछ जगहों पर ऐसी हैं कि उन हिस्सों पर बाल आपको जंगल की तरह नजर आते हैं। बाहर की दुनिया में हवा है तो इंसान के अंदर रूह उसके मानिंद है, और यह दुनिया इतनी पेचीदा है कि उसको समझना हर बंदे के बस की बात नहीं। ये दिल इतने गहरे हैं कि समंदरों की पैमाइश तो इंसान कर सकता है, किसी के दिल की गहराइयों की पैमाइश इंसान नहीं कर सकता। ऐसे पेचीदा इंसान को संवार कैसे लिया जाए, उसके फसाद का हल कैसे ढूंढ लिया जाए। इसलिए कि रब्बे करीम ने अपने बंदों पर एहसान फरमाकर अंबियाए किराम को मबूस फरमाया। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम जो दुनिया में आए उन सब ने यही बात समझाई कि लोगों जो तर्ज ज़िंदगी मैं लेकर आया हूँ, जो तालीमात मैं दुनिया में लेकर आया हूँ, उन तालीमात पर अमल करोगे तो तुम्हारे दिलों के को इत्मीनान और सुकून मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। अगर तुम उनसे रूगर्दानी करोगे तो तुम मुशाहिदात व तजर्बात की ठोकरें खाते फिरोगे, तुम्हें मंजिल पर पहुँचना कभी नसीब नहीं होगा। चुनाची अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने आकर हकीकत से आगाह किया कि इस सारे फसाद की जड़ फ़कत इंसान है। जितना दुनिया में फसाद नज़र आता है उसकी बुनियाद हज़रत इंसान है, ये जानवर नहीं है। आप गौर करें कि दरिंदों ने इंसानियत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना बिगड़े हुए इंसानों ने अपने हाथों से इंसान को पहुंचाया। कभी सुना है आपने कि भेड़ियों ने मिलकर दूसरे भेड़ियों पर हमला कर दिया, शेरों ने मिलकर इंसानों पर हमला कर दिया? नहीं, इनफरादी तौर पर तो किसी एक जानवर ने ऐसा किया होगा, लेकिन इज्तिमाई तौर पे कभी ऐसा नहीं किया। जबकि इंसान इज्तिमाई तौर पर ऐसा करता है। कुछ लोग अपने मफाद के खातिर दुनिया के बाकी लोगों का जीना दोभर कर देते हैं, तो फसाद की जड़ ये खुद इंसान है। कभी दरिंदों ने कोई तंजीम बनाई, कभी आपस में उन्होंने जोड़ नहीं किया कि हम मिलकर इंसानों को नुकसान दें। इंसान मिलकर तंजीम बनाते हैं और अपने मफादात के खातिर दूसरों का जीना हराम कर देते हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने आकर इस हकीकत को खोला। लोगों, फसाद की जड़ तुम्हें बता दी जाए, सुनो ज़रा दिल के कानों से सुनो। इरशाद खुदावंदी है, ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। खुश्की और तरी में जो फसाद नज़र आता है वो इंसानों के हाथों की कमाई है, तो फसाद की बुनियाद खुद इंसान ही है। अब सवाल पैदा होता है, इंसान अगर बिगड़ गया है तो फिर बिगड़े हुए इंसान की इस्लाह की भी कोई सूरत तो होनी चाहिए। तो अंबियाए किराम ने वो डोर का सिरा भी हाथ पकड़वा दिया। उन्होंने बताया कि देखो, जब मछली गलना सड़ना शुरू करती है तो हमेशा सर की तरफ से गलना सड़ना शुरू करती है। इंसान में जब भी फसाद आता है, इंसान में जब भी बिगाड़ आता है, हमेशा उसके दिल के रास्ते से आता है। सबसे पहले इंसान का अज़्व जो ख़राब होता है वो इंसान का दिल है। दिल के संवरने से इंसान संवरता है, दिल के बिगड़ने से इंसान बिगड़ता है। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने नूर नबूवत अता किया है, नूर बसीरत अता किया है, नूर ईमान अता किया है, नूर क़राबत अता किया है कि उन्होंने सही सही इस मर्ज़ की और इस बीमारी की निशानदही कर दी। अल्लाह ने अपने अंबिया की मदद फरमाई, उन्हें हक़ाइक़ से आगाह किया। कुरान मजीद में है, वकज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़। इस तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन व आसमान के मलकूत की सैर कराई। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये नेमतें अता फरमाई। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अरिना हक़ाइक़ दुनिया कमा हिया। ऐ अल्लाह, चीज़ों की जैसी हकीकत है हमें वो हकीकत अता फरमाइए।
तो हकीकतों का पता अम्बिया को चला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अक्ल सलीम अता की, फितरत सलीमा अता की थी कि उन्होंने सही सही इस मर्ज़ की तशख़ीस कर ली कि इंसान के बदन में बिगाड़ कैसे आया। चुनाचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है, जिसका तर्जुमा ये है कि इंसान और आदम की औलाद में एक आज़्व ऐसा होता है कि जब वो बिगड़ता है तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। देखिए लिसान नबूवत, ज़बान नबूवत से इस मर्ज़ की तशख़ीस कैसे ठीक हो रही है कि आदम की औलाद के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, जब वो ख़राब होता है तो पूरे जिस्म के आमाल ख़राब होते हैं। मालूम हुआ कि इस आलमगीर फ़साद की जड़ इंसान है और इंसान के फ़साद की बुनियाद उसका बिगड़ा हुआ दिल है। ये जो दिल है ये तो है छोटा सा, मगर बहुत ही कोई गहरी चीज़ है। ये छोटा सा अजूबा है, ये सादा भी है तो अय्यार भी है, मगरूर भी है तो खाकसार भी है, बेखबर भी है तो खबरदार भी है, ये मसीहा भी है तो बीमार भी है, ये मुत्तकी भी है तो गुनहगार भी है, ये ताकतवर भी है तो लाचार भी है, ये मजबूर भी है तो मुख्तार भी है, ये मकतूल भी है तो तलवार भी है, गुल भी है तो ये खार भी है, ये बिकता भी है तो ये ख़रीदार भी है। अगर ये इश्क की महफिल में मदोश है तो ये अक्ल की महफिल में अय्यार भी है। ये बिगड़े तो बुत का बंदा है, अगर संवरे तो अपने रब का परिस्तार भी है। दिल का रुख किसकी तरफ है, अल्लाह की तरफ है या दुनिया के ख्वाहिशात को पूरा करने की तरफ? हमें आज अपने मन की दुनिया में झांक कर देखना होगा कि हमारे दिल की गाड़ी किस रुख पर चल रही है। क्या ये दुनिया की मोहब्बत से लबरेज हो चुका है और फ़कत दुनिया की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हर वक्त मसरूफ़ व मशगूल रहता है, या ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत से भर गया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा जोई के लिए ये हर वक्त कोशा है। आज हमें इस बात की ज़रूरत है। इसलिए अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की तालीमात का जो निचोड़ है वो ये है कि ये रोशनी दिल से मिलेगी, ये मीनारे नूर है इंसान के लिए। चुनाचे इंसान का दिल इतना बिगड़ चुका है कि आज उसमें इंसानियत का दर्द ख़त्म होता जा रहा है। इस नफ्सा नफ्सी के आलम में हर एक अपने मफाद पर नज़र रखे हुए है। ईसार जिस चीज़ को कहते हैं आज वो ज़िंदगियों से निकल भी गया है। जब इंसान के दिल में किसी का दर्द न हो तो फिर इंसान को परवाह नहीं होती। आज आप बताइए कि कई मरतबा मौसम के ख़राबी की वजह से हज़ारों नहीं लाखों मच्छर मर जाते हैं। कभी आपने अखबारों में ये खबर पढ़ी कि बड़े अफसोस की बात है कि फ़लाँ जगह लाखों मच्छर मर गए। बड़ी अफसोसनाक खबर है कि फ़लाँ जगह लाखों मक्खियाँ मर गईं, इसलिए कि इंसान को उसकी कोई परवाह नहीं होती है। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान खुद बगरज़ बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह जब इंसान खुद गरज बनता है तो दूसरे इंसान उसकी नज़र में मक्खी मच्छर की तरह बन जाते हैं। उसके घर उजड़ रहे हों, उनके मासूम बच्चे उनकी आंखों के सामने मर रहे हों, उनकी इज्जतें लूटी जा रही हों, उनको दर बदर किया जा रहा हो, इस करने वाले को कोई परवाह नहीं होती। ये अपनी बात पर डटा हुआ है कि नहीं मेरी बात मानी जानी चाहिए। इसीलिए इंसान के संवरने के लिए उसके दिल का संवरना ज़रूरी है। और दिल क्यों नहीं संवर रहा है? इसलिए कि खुदगर्जी की ज़िंदगी आ गई है। जब दिल में ही पाप की घुंडी है तो उसमें इंसानियत जपने से क्या फ़ायदा। लिहाजा आज इस तरह होता है कि कहने वाले ज़बान से इंसानियत के हमदर्द बन रहे होते हैं और उनके अमलों को देखें तो इंसानियत का जनाजा निकल रहे होते हैं, इंसानियत का जनाजा निकल रहा होता है। इसलिए कि दिल की घुंडी ही खुली नहीं है। इस वक्त इंसानों पर एक अजीब से हालात हैं, इंसानियत परेशान नज़र आती है, लेकिन इसकी बुनियाद हमारी अपनी गफलत है। अगर हमने अपने दिलों की बीमारियों का इलाज किया होता तो आज परेशानी के यह दिन हमें देखने को नसीब न होती। और इसी में हमने अपनी ज़िंदगी की कामयाबी समझ ली, इस वजह से कि आज ये फसाद बढ़ता ही चला गया। याद रखिए कि हर फसाद की बुनियाद ये खुदगर्ज़ दिल है। दिलों के अंदर जो खुदगर्ज़ी छुपी हुई है, मफाद परस्ती छुपी हुई है, किसी भी सतह की हो, ये असल बुनियाद है इंसानों की परेशानी की। इसका इलाज ये है कि इंसान अपने दिल को ईमान के नूर से मामूर करे, अल्लाह ताला की मोहब्बत से अपने दिल को भर ले तो फिर इंसान के दिल में इंसानियत का दर्द पैदा हो जाएगा। और जब दर्द पैदा होगा तो फिर इंसानों से हमदर्दी भी होगी।
एक होता है इंसान की कहानी बयान करना, वो कहानी बयान करते हुए टस से मस नहीं होता है, और एक होता है एक औरत का अपने घर की, अपने शौहर की परेशानियां बयान करना, वो बयान भी कर रही होती है और आंखों में से आंसू भी टपक रहे होते हैं। इस कहानी के बयान करने में और उस कहानी के बयान करने में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। आज हम इंसानियत की परेशानी की कहानी बयान करते हैं, आम किस्सा गोई की तरह करते हैं। जब दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत होगी तो फिर जब हम इंसानियत की परेशानी की कहानी बयान करेंगे तो हमारा हाल उस औरत की तरह होगा जो घर की परेशानी की बात कर रही है और उसके आंखों से सावन भादों की तरह बरसात भी हो रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने सहाबा किराम के दिलों की इस्लाह फरमाई तो उनके दिल में इंसानियत का ये दर्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भर दिया। चुनाचे उनके अंदर एक दूसरे के साथ गमगुसारी या एक दूसरे के साथ हमदर्दी का ऐसा जज्बा भर गया कि उन्होंने ऐसी ऐसी मिसालें दिखाई कि तारीख़ इंसानियत ऐसी मिसालें दिखाने से कासिर। देखिए, हमारी ज़ात बदलेगी, हमारे घर का माहौल बदलेगा, हमारा मुआशरा बदलेगा, हमारे मुल्क के हालात बदलेंगे, पूरी दुनिया के हालात बदल जाएंगे अगर इंसानों के दिल बदल जाएं। इसीलिए याद रखिए, दिल बदल जाता है तो इंसान बदल जाता है, ज़िंदगी के हालात बदल जाते हैं, मकसद हयात बदल जाते हैं, मोहब्बत व अदावत के मेयार बदल जाते हैं, कसब व तिजारत के अहकाम बदल जाते हैं, घर बदल जाता है, मुआशरा बदल जाता है, अखलाक बदल जाते हैं, ज़माना बदल जाता है, तारीख़ बदल जाती है, दिन बदल जाते हैं, रातें बदल जाती हैं, साथी बदल जाते हैं, पैमाने बदल जाते हैं, बल्कि मैखाने बदल जाते हैं। आइए अपने दिलों को बदल लीजिए ताकि दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत आ जाए और हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा नसीब हो जाए। और आज पूरी दुनिया के अंदर फ़साद मचा हुआ है, इस फ़साद का हल इंसानियत को नसीब हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से हम सबके दिल की दुनिया को बदल दे और उसे अपनी मोहब्बत से लबरेज फरमा दे और हमें हकीकत से आशना फरमाकर हमें नेकूकारी और परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।